Hello students, welcome to official YouTube channel of Aryant Academy. Myself, Professor Mahendra Jokarwala, Senior Physics Faculty at Aryant Academy. Today, we will be discussing the solution of NEET UG 2023 paper code H6 solutions. The first half, that is question number 1 to question number 25, has been already discussed by Professor Kamlesh Yadav sir, and next half, that is question number 26 to question number 50, will be discussed by me. So let's start class. Question number 26. An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. We know capacitive reactance is given as 1 upon 2 pi Fc. Capacitive reactance is inversely proportional to frequency. Here frequency decreases. Frequency decreases means capacitive reactance increases, and displacement current is inversely proportional to capacitive reactance. So as capacitive reactance increases, displacement current decreases. So answer is option 1. Question number 27. The ratio of frequency of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length. Now we know for open pipe fundamental frequency is V upon 2L, whereas for closed pipe it is V upon 4L. So by taking ratio, frequency of open to the closed pipe is V upon 2L upon V upon 4L. V, L gets cancelled. It is 1 upon 2 into, it goes 4 by 1, that is 2:1, option 4th. Next question. In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in the Balmer series is lambda, the shortest wavelength in the bracket series. We know for shortest wavelength, formula is n square by r, where n is the principal quantum number. So wavelength lambda is proportional to n square. So for lambda of shortest bracket to lambda of Balmer will be n square for bracket, short में bracket लिख रहा हूँ, n square for Balmer. For bracket n is 4 square upon n is 2 for Balmer, 2 square, 16 by 4, which is 4. Now for Balmer, the shortest wavelength is lambda. It will go there. So lambda for bracket, shortest wavelength will be 4 times of lambda. Answer is 4 lambda, option 4. Next question. Given are the two statements. Statement 1, photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. Correct. Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. Perfect. It means both statements are true. Option 3. Question number 30. The magnitude and direction of the current in the following circuit is, as you can see, 10 volt battery and 5 volt battery. 10 volt battery is bigger than 5 volt battery, so the direction of current will be decided by 10 volt battery, that is from positive terminal of 10 volt to negative terminal of 10 volt. So if you see here, the current will be flowing like this from A to B through E. So either first or fourth, दोनों में से एक option right होगा. Now 10 volt battery and 5 volt battery are connected so as to oppose each other, means the net voltage will be 5 volt. Okay, so E is equal to I into R. A is 5 volt, I चाहिए, resistance 1 ohm, 7 ohm, 2 ohm, they are connected in series, means 10 ohm. So I will be basically 5 by 10, which is 0.5 ampere. Option 4th, 0.5 ampere from A to B through E. Next question. Two bodies of mass m and 9m are placed at a distance of r. This is m. This is 9m, placed at a distance of r. Okay. The gravitational potential on the line joining of the bodies where gravitational field is 0. मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे gravitational field 0 है. So let us say this distance is x. So this distance will be r minus x. बराबर है. Now at this point, since gravitational intensity is 0, that is gravitational field is 0. So m upon x square will be 9m upon r minus x the whole square. By taking square root, mm पहले कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन r माइनस एक्स. यहाँ से x मिलता है r बाय 4. ये डिस्टेंस बनता है r बाय 4, r माइनस एक्स बनेगा 3r बाय 4. वी नो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन एज Gp इज इक्वल टू माइनस जी एम by r. So
gravitational potential net will be minus g m1 upon r1 minus g m2 upon r2. फर्स्ट केस में माइनस जी, मास है m स्मॉल m, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट r/4 माइनस जी सेकेंड मास 9m डिस्टेंस 3r/4. By solving this we get the gravitational potential at minus 16 gm/r and that is our answer, option A. Next question is from Udium. A metal wire has mass, radius and length. The maximum possible percentage error in measurement of density. Now we know density is defined as mass upon volume pi r square L. So delta rho by rho is equal to delta m by m plus 2 delta r by r plus डेल्टा एल बाई एल. परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट द आंसर एज 1.6%, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड नेक्स्ट हाफ विथ स्पीड 2v. फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला, v एवरेज इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, शॉर्टकट है 2 इंटू v इंटू 2v अपॉन 2v प्लस v 3v. v गेट्स कैंसल्ड, एक v को काट दिया हमने, 2 2 ज़ा 4, 4v/3. दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 12 वोल्ट 60 वॉट लैम्प इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो सेकेंडरी पे हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, 60 वॉट का पावर है. ओके, हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट. ओके, अज्यूमिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी. अभी प्राइमरी में करंट चाहिए, हमें पता है पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो आउटपुट पावर पे जो होगा, मतलब सेकेंडरी पे जो पावर होगा वही प्राइमरी पे होगा. करेक्ट है. वी हैव ईएमएफ, वी हैव पावर, अपने को चाहिए करंट. सो वी नो P इज इक्वल टू ई आई. सो आई हो जाएगा P अपॉन ई. पावर इज 60 अपॉन 220. इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कम्स टू 0.27 एम्पियर, ऑप्शन 3. नेक्स्ट, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू. यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा. नॉर्मली आप करेंगे लैम इज इक्वल टू h बाई पी, पी को √2m e इंटू वी लिख दिया होगा, तो आपने लिखा होगा लैम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v, जो गलत जाएगा. यहाँ पर एक्स-रे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी इज गिवन बाय hc बाय लैम. दिस एनर्जी इज e इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v. तो आप देखेंगे वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू v as this, that is wavelength is actually inversely proportional to v, not √v. So answer will be option 4. Question number 36. The resistance of a platinum wire at 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 ohm at 80 degree Celsius. Temperature coefficient of resistance पूछा है. बच्चा लोग, we know temperature coefficient of resistance is RT minus R0 upon R0 into T minus 0, right? RT 6.8 minus R0 is 2 divided by R0 2 80 minus 0. 6.8 minus 2 आएगा 4.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 80. 2 से हम कैंसिल करेंगे, बनेगा 2.4 अपॉन 80. आप ऑप्शन में देखेंगे 10⁻², -1, -4, -3 कॉमन है. एक काम करते हैं, 2.4 को हम ऐसा लिखते हैं 240 इंटू 10⁻², डेसिमल एडजस्ट किया है, डिवाइड बाई 80. अगर आप कैंसिल करोगे तो सीधा 3 मिलेगा, 3 इंटू 10⁻². ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक हो सकती है. अगर आपने इसको शॉर्ट डाइपोल समझा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशन होती है आपका आर एल से काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है. तो इसको हम लोग एज इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, इसमें अपने पास 2 चार्जेस हैं और पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. तो शुरू करते हैं. ड्यू टू फर्स्ट चार्ज मैं प्लस क्यू ले रहा हूँ, तो प्लस क्यू से P का डिस्टेंस मिलेगा 5 - 3 विच इज़ 2 सेंटीमीटर.
और माइनस क्यू से डिस्टेंस मिलेगा 5 + 3 विच इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा V1 + V2। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू अ चार्ज KQ/R, सो KQ1/R1 + KQ2/R2। हम यहाँ से K कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा Q1, फर्स्ट चार्ज में Q ले रहा हूँ, Q/ इसका R है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻² मीटर, प्लस ऑफ माइनस Q, तो मैं माइनस लिखता हूँ, अपॉन R2 होगा 3 + 5 विच इज 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻²। यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं कि Q कॉमन ले लो और -2 10⁻² कॉमन ले लो, ठीक है। 1/2 - 1/8, 1/2 - 1/8 देगा आपको 3/8 और 10⁻² ऊपर जाएगा, जो एक्चुअली बनेगा 3/8 KQ -2 ऊपर गया एज 10⁻²। सो अपना आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, नाउ ए के आगे नॉट लगा है मीन्स A0, बी के आगे नॉट गेट लगा है मीन्स B0, दे आर कनेक्टेड विथ एंड गेट, और उसके आगे भी एक नॉट लगा है मीन्स दिस इज द करेक्ट आउटपुट। नाउ y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस B, मीन्स इट इज अ और गेट। और गेट कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन 4th, सो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 39, a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in figure. The magnetic field at point P for steady configuration current is given by. For these two wire, current is flowing like this. ऊपर वाले वायर में करंट राइट डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाले वायर में करंट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों को अगर हम यूज़ करें यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ऊपर वाले वायर की वजह से किसी एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड, नीचे वाले वायर की वजह से भी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड, मतलब इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एट ए डिस्टेंस ऑफ R, ये देखेंगे तो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी R है, तो इस डिस्टेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I/4πr, बट दो वायर है तो 2 × 2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दीज 2 वायर्स। ओके, अब सेमी सर्कुलर वायर ये वाला जिसमें करंट का डायरेक्शन आप देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है, बिकॉज ऑफ दिस एट दिस पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I/4r, बट ये होगा आउटवर्ड और ये दोनों फील्ड होगी इनवर्ड। अब इनमें से कौन सी बड़ी है? तो सेकेंड फील्ड बड़ी है, तो मैं इसको B1 और B2 लिख दूं, तो यहाँ से नेट फील्ड होगी। अब एक फील्ड इनवर्ड जा रही है, एक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, आउटवर्ड वाली फील्ड बड़ी है, तो हम लिखेंगे μ0I/4r -2 × μ0I/4πr। यहाँ से आप μ0I/4r कॉमन ले सकते हो, 1 - 2/π, so the net field will be outward means away from the page. Option 1 is correct. Question number 40, two thin lenses are of same focal length f, but one is convex, other is concave. When they are placed in contact with each other, equivalent focal length, हमें पता है equivalent focal length होगा 1/f1 + 1/f2। अब एक है फोकल लेंथ कॉन्केव का, एक है कॉन्वेक्स का, तो एक होगा पॉजिटिव से +f, एक होगा नेगेटिव से -f, ये आंसर देंगे 0। ये 1/f0 आया तो f क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इनफाइनाइट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R0 दिया हुआ है 5.3 × 10⁻11, इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट? वी नो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n² R0, थर्ड ऑर्बिट मीन्स 3 का स्क्वायर, 9 टाइम्स ऑफ R0 विच इज 9 × 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, आंसर आएगा 4.77 एमस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor, मतलब horizontal case है, remain stationary. The coefficient of static friction, हमें पता है maximum static frictional force होता है mu times of n, और horizontal पे n होगा mg, so mu mg. Now F is equal to m into a max लिख सकते हैं हम लोग, which is mu mg. Let's cut mm. Maximum acceleration होगा mu g
म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.15 इंटू ग्रेविटी दी हुई है 10, आंसर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन 1. A satellite is orbiting just above the surface of Earth with period t. If d is the density of Earth and g is the gravitational constant, the quantity 3 pi upon gd. वैसे तो ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बट वी कैन सॉल्व दिस यूजिंग यूडीएम. 3 pi upon gd नहीं पता क्या है. वी नो 3 और पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा. g का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. d का यूनिट क्या होगा? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज इन केजी, किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब. लेट्स कैंसल. मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में से मीटर स्क्वायर को कटेगा, मतलब मीटर बचेगा. 1 kg गया. हमारा आंसर आएगा, ये मीटर और केजी ऊपर लेकर जाते हैं, मीटर इंटू केजी अपॉन न्यूटन. बट न्यूटन एक्चुअली क्या होता है? न्यूटन इज फोर्स. एम केजी ऊपर रहने दिया न्यूमरेटर में. न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स. मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. केजी गया, मीटर गया, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर. अब सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होगा? तो वो होगा टी स्क्वायर का. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44. द नेट इम्पिडेंस. दिस इज फ्रॉम AC circuit. We know impedance is given as R square plus XL minus XC the whole square. करेक्ट है, अंडर रूट में. यहां से पहले हम निकालेंगे XL. XL का फॉर्मूला होता है 2 pi FL. 2 pi F कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज इंटू L 50 अपॉन पाई मिली हेनरी है, मतलब आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे. इसको सॉल्व करने के बाद आता है 5 ओम. एक्स सी होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. 1 अपॉन 2 पाई एफ इज अगेन 50, बट वैल्यू ऑफ सी. सी का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻³ अपॉन पाई इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶. इसको सॉल्व करने के बाद आता है 10 ओम. तो हमारा z बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. आर खुद कितना है? 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मीन्स 5 - 10 द होल स्क्वायर. 5 - 10 -5 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 100 + 25 125 विच विल गिव यू 5√5. सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. 10 resistor, each of resistances are connected in series to a battery of EMF E, negligible internal resistance. Then they are connected in parallel to the same battery. The current is increased by n times. The value of n is. तो let's start. पहले सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R. 10 टाइम्स सीरीज में कनेक्ट किया मीन्स 10R हो जाएगा. फर्स्ट केस में अपने को करंट मिलेगा E अपॉन नेट रेजिस्टेंस विच इज 10R. सेकेंड केस में E अपॉन नेट रेजिस्टेंस. अब नेट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में कनेक्ट किया सेकेंड केस में, मतलब 10 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया, हो जाएगा R/10. 10 ऊपर जाएगा 10E/R. बोला गया है करंट इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, मतलब n क्या हो जाएगा अपना? I2/I1. I2 कितना है यहाँ पर? 10E/R. I1 कितना है? E/10R. E/R गेट्स कैंसल्ड. 10 अपॉन 1/10 बचा, जो ऊपर जाके बनेगा 100. ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward. अगर अपवर्ड फेंका है तो वेलोसिटी हम नेगेटिव लेंगे, ओके, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. विथ अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड. हाइट पूछा है. फॉर्मूला लगाएंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन S = ut + ½ AT². डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव. जो ऊपर फेंका मतलब अपवर्ड वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होगी. h हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट -4 इंटू टी कितना लग रहा है? t 4 सेकेंड प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, कितना होगा? ग्रेविटी 10 लेने बोला है, यहाँ पर 10 ले लिया, इंटू t² 4 का स्क्वायर, -4 इंटू 4 -16 प्लस 10 इंटू 4² इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 80. आंसर आएगा 64 मीटर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 47. In the figure shown here, what is the equivalent focal length of the combination of the lenses? अब यहाँ पे क्लास 3 lenses है, 1, 2
3, मिडल वन इज इक्वी कॉन्वेक्स। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे वो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव है। पहले मैं फर्स्ट लेंथ के लिए निकालता हूँ। इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ L माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये अगर R1 लेता हो तो वो इन्फिनिटी है और R2 जो भी होगा इस लेंस के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो 1/f यहाँ से मिल जाएगा। म्यू ऑफ लेंस का म्यू 1.6 लेने बोला है, तो 1.6 माइनस 1 विच इज़ 0.6, 1/infinity विच इज़ 0 माइनस 1/, अब इसके लिए R पॉजिटिव जाएगा जो कि होगा 20, तो ये हो जाएगा माइनस 0.6/20, माइनस साइन बाहर आ गया, ये बन चुका है 0। ठीक है, तो इस केस में अगर आप f देखेंगे तो f बनेगा 20/0.6 माइनस में माइनस 200/6 विच इज़ माइनस 100/3। अच्छा क्लास, ये जो f1 लिया मैंने सेम टू सेम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेनो कॉन्केव लेंस दोनों के लिए सेम टू सेम होगा, तो f1 और f2 का वैल्यू सेम मिलेगा माइनस 100/3 सेंटीमीटर में ऑब्वियसली। थर्ड लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसके फोकल लेंथ के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्लास R/2 इंटू म्यू माइनस 1, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1, R कितना दिया है क्लास अपने को 20/2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इस बार 1.5 दिया, 1.6 यूज नहीं करेंगे, 1.5 माइनस 1.5, आंसर आ जाएगा 20। करेक्ट है क्लास। सो नाउ वी नो नेट फोकल लेंथ, हमें तीनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए। 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 विच विल बी इक्वल टू, अगर f1 आपका माइनस 100/3 है तो 1/f1 को हम रिवर्स करेंगे, माइनस 3/100 माइनस 3/100 प्लस f, जो f3 है थर्ड हमने मिडल वन लिया हुआ है, वो बनेगा 1/20। अगर मैं इसे एलसीएम लूँ तो 100 का हो जाएगा -3 -3, 100 एलसीएम लिया हुआ है हमने, 25 5, आंसर आएगा -6 + 5 -1/100, लेकिन ये तो होगा 1/f, मतलब f कितना होगा -100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, अ वायर कैरिंग करंट I along the positive x axis has the length, L वेक्टर दिया है पॉजिटिव x axis L I कैप, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ L इंटू 1 I कैप, एंड द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर एज 2 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 4 K कैप। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वी नो दैट फोर्स वेक्टर इज I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो I इंटू I को मैं साइड में रखता हूँ, L का मैग्नीट्यूड भी हम साइड में ले लेते हैं, आंसर होगा डिटर्मिनेंट में I J K, L वेक्टर लेंथ वेक्टर का सिर्फ I कैप है, मतलब x कंपोनेंट है 1, बाकी तो 0 हो गया, और B वेक्टर के कंपोनेंट होंगे 2 3 -4। यूजिंग दिस वी गेट द आंसर एज I कैप के लिए 0, J कैप खुद नेगेटिव में होता है -4 इंटू 0, मतलब 4 J कैप प्लस 3 K कैप। ये वेक्टर फॉर्म है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में I और L बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 4² प्लस 3², आंसर आएगा 5IL, आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे एक वेव कंप्लीट हो रही है 8 सेकेंड्स में, तो टाइम पीरियड कितना हो गया क्लास 8 सेकेंड। अब हमें चाहिए जब पार्टिकल t = 2 सेकेंड पे होगा, मतलब यहाँ पर एट t = 2 सेकेंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो +1 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है -ω²x माइनस ओमेगा, ओमेगा इज 2π/T टाइम पीरियड, जो कि हमने देखा 8 सेकेंड है, तो 8 का स्क्वायर इनटू एट t = 2 x इज +1, तो +1 ले लेंगे, 2 को काटो 8 को 4, π/4 का स्क्वायर चाहिए -π²/16, दैट इज योर एक्सेलरेशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक with velocity u, ओके ये velocity u है, when it travels 24 centimeter
24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स u/3, ओके। देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। द टोटल लेंथ पूछा है। अब u/3 से 0 कितने सेंटीमीटर में होगा नहीं पता, लेट अस से x सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो इसको मैं s1 बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, s2 को बोलता हूँ x। एक बार हम x निकाल लेंगे, एक बार x मिल गया तो पूरा लेंथ भी देख लेंगे कितना है। वी विल यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन v² = u² + 2as। फॉर द फर्स्ट केस, अगर आप फर्स्ट केस के लिए देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी u/3 है। अगर इसमें मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ v² = u² + 2as, चलिए लगाते फर्स्ट केस में। इसकी फाइनल वेलोसिटी u/3 होगी, u/3 का स्क्वायर = u² + 2a इंटू s कितना है 24 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे ताकि फाइनल आंसर x भी सेंटीमीटर में आए। u/3 का स्क्वायर हो जाएगा u² / 9 u² + 2 इंटू 48a, वो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, u² / 9 माइनस u² बनेगा, -8u² / 9 = 48a। 8 कैंसिल करते हैं, यहाँ से हमें डायरेक्टली मिलेगा u² / 9 एज -6a। इसे बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। इन द सेकेंड केस सेम v² = u² + 2as यूज़ करते हैं। इस केस में, सेकेंड केस में, मतलब इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0² = u/3 का स्क्वायर प्लस 2a s2। s2 के जगह क्या हम x लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो लेट्स राइट x। सो 0 = u/3 u² / 9 प्लस 2ax, यहाँ से माइनस u² / 9 हो जाएगा 2ax, बट माइनस u² / 9 क्या होगा हमारा 6a विच इज़ 2ax। तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा क्लास 3 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस हो गया अपना 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 24 + 3 27 सेंटीमीटर। So the correct option is option number 3, 27 centimeter. So we are done with the question number 50, guys. All the best for your results. Hoping for your better results. If you have liked the video, please subscribe to our YouTube channel Aryant Academy. Like and share. Thank you very much, everyone.